Hello everyone. So we have already discussed the theory part of resonance in the previous lectures. This is the summary of characteristics of resonant RLC circuits. I have made 3 columns. This is characteristics, series circuit and parallel circuit. First one is resonant frequencies, that is omega naught. So omega naught in case of series circuit and parallel circuit is same, that is 1 by root over LC. Second is quality factor. See, quality factor in case of series RLC circuit is omega naught L by R or 1 by omega naught RC. But at the same time in case of parallel circuit, it is just the reciprocal of this series RLC circuit, that is R by omega naught L or omega naught RC. Third is bandwidth. Bandwidth is same in both the cases, that is omega naught by Q and omega naught by Q. It is okay to remember this as omega naught by Q, but एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, that is Q in both the cases is different. That is Q in case of series circuit is omega naught L by R or 1 by omega naught RC. But when dealing with parallel circuit, you will have to put the value of Q as R by omega naught L and omega naught RC. तो आप ये याद रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जो सर्किट दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, उस हिसाब से आप क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू पुट करना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, दैट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. सो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल इट इज ऑल्सो सेम, बट एट द सेम टाइम मैंने जो इसके लिए बोला था वहीं इसके लिए बोलूंगी, दैट आप Q की वैल्यू ध्यान रखना, दैट Q की वैल्यू सीरीज के केस में अलग है एंड इट इज डिफरेंट इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट. लास्ट वन इज फॉर Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और फॉर हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट. सो फॉर हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट दिस omega 1 and omega 2 is same in both the cases as omega naught plus minus bandwidth by 2 and omega naught plus minus bandwidth by 2, but bandwidth in both the cases will be different. Plus sign for omega 2, that is high upper half power frequency, and negative sign for omega 1, that is lower half power frequency. So this is the summary of the characteristics of resonant RLC circuit. Now let us do some problems. So this is the first question which we are going to deal. Question is, in the below given electrical network, find the resonant frequency, half power frequency, quality factor and the bandwidth. Circuit is like this. This is what series RLC circuit. सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया, that is it is series और parallel RLC circuit. और which type of circuit, tank circuit, series, parallel. तो हमने क्या देखा, that is this is series RLC circuit. Second is देखो R की वैल्यू, L की वैल्यू एंड C की वैल्यू 0.4 माइक्रोफैराड, R की 2 और L की 1 मिली हेनरी दी हुई है. सो फर्स्ट क्या निकालना है हमें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो व्हाट वी नो अबाउट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर LC सिंपली. सो पुट द वैल्यू ऑफ L and C, that is 1 into 10 to the power minus 3 into 0.4 into 10 to the power minus 6. So you will calculate it and get it as 2 into 10 to the power minus 5. So this is 100 into 10 to the power cube by 2, that is 50k radian per second. So this is our resonant frequency. Second is quality factor. So quality factor in case of series circuit is what, omega naught L by R. We know the value of omega naught, that is 50k, that is 50 into 10 to the power cube into L, that is 1 into 10 to the power minus 3, and the value of R is 2. So from here quality factor is 25, which is very much greater than 10, isn't it? तो यहाँ पे अगर आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो सिंपली आप क्या करोगे, ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट माइनस बैंडविड्थ बाय 2 एंड ओमेगा 2 इज ओमेगा नॉट प्लस ऑफ बैंडविड्थ बाय 2. सो अब हमें क्या निकालना होगा, बैंडविड्थ की वैल्यू निकालनी होगी. बैंडविड्थ इन केस ऑफ सीरीज RLC सर्किट
simply r by L in radian per second and r by 2 pi L in hertz. So r by 2 by 1 into 10 to the power minus 3, that is 2 kilo radian per second, isn't it? Now put the value minus 2k by 2, and this is 50k plus of 2k by 2. So omega 1 we are getting as 49k radian per second and this is 51k. तो यहाँ पे आप ध्यान देना एक चीज, अगर यहाँ पे हमारी क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 आई थी, बट वहीं अगर ग्रेटर देन 10 नहीं आती तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते जो हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए पढ़ा है. दैट इज ओमेगा 1 के लिए क्या होता है, माइनस r बाई 2l प्लस ऑफ r बाई 2l स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई LC. ये फॉर्मूला लगाते और ओमेगा 2 के लिए जस्ट यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता, बाकी सारी चीजें सेम होती. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. Find the resonant frequency of the below given electrical network. तो अगर सबसे पहले आप सर्किट को नोटिस करोगे तो आप क्या देखोगे कि सीरीज RLC सर्किट है, पैरेलल RLC सर्किट है, टैंक सर्किट है और सीरीज पैरेलल सर्किट है. ये चारों में से ये किसी टाइप का सर्किट नहीं है, ये एक रैंडमली गिवन सर्किट है. तो इस टाइप के सर्किट के लिए के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले प्रोसीजर देख लो. So write down the procedure to find the resonant frequency for any circuit. So procedure, write down. First one, find the equivalent impedance of the circuit. मीन्स सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालनी होगी सर्किट की. ओके, सेकेंड टास्क इज equate the imaginary term, is equate the imaginary term of impedance to 0 and calculate the frequency. And जो frequency निकल के आएगी, that is, and this frequency value will be equals to resonant frequency, to the resonant frequency. So सबसे पहला टास्क क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है. फिर हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z we have to put it equated from 0. So कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इस वाले ब्रांच की Z1 मान लो, इस वाले की Z मान लो, Z2, और ओवरऑल जो हो जाएगा वो हमारा Z हो जाएगा. ठीक है, सो Z1 कैलकुलेट करो आप. सो Z1 विल बी J ऑफ XL माइनस XC सिंपली, इजंट इट. XL की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा L minus 1 by omega C. So this is J of omega is, we have to calculate, L की value 4 है and this is 1 by omega. Now second is Z2. So Z2 will be how much? So second is Z2. Z2 will be what? Minus J of XC simply. So this is minus J by omega C and the value of C is 1 farad. So minus J by omega. Now overall impedance will be what? This 1 plus Z1 into Z2. These two are in parallel to Z1 plus Z2. Z1 की वैल्यू कितनी है, J into 4 omega minus 1 by omega into minus J of J by omega, and here J 4 omega minus 1 by omega minus 1 by omega. So 1 plus
this is minus, sorry, 1j cancel out, so minus j, write it down as 4 omega minus 1 by omega divided by 4 omega minus 2 by omega. अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को 0 करना है, मीन्स इस पार्ट को हमें 0 से इक्वेट करानी है. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0. सो 4 ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा divided by 4 omega minus 2 by omega is equals to 0. So that is 4 omega minus 1 by omega is 0. So omega naught और ओमेगा स्क्वायर, ये जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वही क्या हो जाएगी, हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1/4. सो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 रेडियन पर second. So this is our resonant frequency of the given circuit. Okay. Now let us see one more problem. So this is our third question. In the below given electrical network, find the output voltage V0 when the circuit is operating at resonant frequency of tank circuit. तो हमें क्या निकालना है, this output voltage V0. ये क्या है, ये हमारे पास जो LNC पैरेलल में है, दिस इज नथिंग बट आइडियल टैंक सर्किट. सो दिस इज आइडियल टैंक सर्किट. एंड आइडियल टैंक सर्किट के बारे में हमें क्या पता है. और देखो एक चीज और यहाँ पे दी हुई है, दैट इज सर्किट इज ऑपरेटिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट वर्क कर रहा है तो आइडियल टैंक सर्किट मीन्स इसकी जो जेड की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, इजंट इट. देखो इससे आप एक तरीके से और ऐसे भी देख सकते हो दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्ससी. और सिंस ये दोनों पैरेलल में है, सो इसकी ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल जेड इन्फिनिटी आएगा, इजंट इट. सो जब ये जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, सो दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस विल ओपन एंड दिस इज प्लस माइनस वी नॉट. सो अब बताओ आप, यहां से V0 की वैल्यू क्या निकलेगी, सिंपली 0, इजंट इट. सारी ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे अकर हो जाएगी. और यहाँ सिंस करंट तो हमारी 0 हो जा रही है, तो यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं ना. सो ये दिस V0 विल बी इक्वल्स टू 0. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. नाउ लेट अस डू वन लास्ट क्वेश्चन of this chapter. So this is our last question which we are going to discuss in this lecture and the chapter resonance. So question is a circuit is like this and we have to find the average power consumed in the circuit. तो ये सर्किट देख के सबसे पहले क्या ध्यान में आ रहा है, देखो एवरेज पावर कंज्यूम निकालनी है हमें. सो पी एवरेज की वैल्यू हमें क्या क्या पता है, पी एवरेज इज I/RMS स्क्वायर इंटू आर और V/RMS स्क्वायर इंटू आर. यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा. और यू कैन राइट इट इन पीक वैल्यू दैट इज हाफ IM स्क्वायर इंटू आर और VM स्क्वायर बाई 2R, इजंट इट. ये सारी वैल्यूज निकल के आएंगी हमारी. देखो और सबसे पहले ये सर्किट पे आप ध्यान दोगे तो ये किस टाइप का सर्किट है, सीरीज पैरेलल. दिस इज अ सीरीज पैरेलल सर्किट. सो सीरीज पैरेलल सर्किट के केस में मैंने क्या बताया था, देखो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला तो मैंने बताई थी. चलो ओमेगा नॉट अगर आपको निकालना हो तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी, 1/√LC एंड दिस इज R1 स्क्वायर माइनस L/C. दिस इज ऑल अंडर इन रूट एंड R2 स्क्वायर माइनस L/C. ये तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता थी कि ये इस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये होती है. बट मैंने साथ ही साथ एक और चीज बताई थी दैट दिस सर्किट विल एट रेजोनेंस एट एनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू L/C. तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. तो ये देखो R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू भी 2, L की वैल्यू 4,
सॉरी दिस इज रूट एल बाई सी ना, 4/1, सो दिस इज 2। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स वी कैन से दैट दिस सर्किट विल बी एट रेजोनेंस एट एनी फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी आपका निकाल लो यहाँ से, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू रूट एल 1/√LC, तो ये हो जाएगी हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो 4 × 1, सो 1/2 रेडियन पर सेकेंड। देखो हमें पी एवरेज निकालना है तो IRMS² × R चाहिए। इस केस में सिंस ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप G इक्विवेलेंट निकालो या टोटल इम्पिडेंस निकालो, फिर वहां से R लेके तब इस वैल्यू में पुट करो R इक्विवेलेंट निकाल के। ये सारी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस सर्किट इज एट रेजोनेंस एट हाफ रेडियन पर सेकेंड और एनी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जब अगर आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो 2 ओम आएगी। ओके देखो ये तो मैंने बताया ऐसे, अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलो अब यहां से निकाल लो y1, इसे y1 मान लो, इस वाले को y2 मान लो। तो y1 क्या लिखोगे आप, 1/2 प्लस j ओमेगा इज 1/2 एंड L इज 4, सो 1/2 प्लस 2j, इसे रैशनलाइज करो तो यू विल गेट इट एज 1/4 माइनस 1/4 j। y2 जब निकालोगे आप, y2 इज 2 माइनस ऑफ j बाई ओमेगा c, तो ओमेगा 1/2 एंड दिस इज 1, सो दिस इज ऑल्सो 1/2 माइनस 2j। इसे भी आप रैशनलाइज करो, 2 प्लस 2j। तो इसे रैशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/4 प्लस 1/4 इंटू j। नाउ y इक्विवेलेंट क्या होगी हमारी, y1 प्लस y2। अब देखो y1 प्लस y2, अब आप तो यहां से y1 प्लस y2 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 माइनस j/4 प्लस ऑफ 1/4 प्लस j/4। दिस विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट इट एज 1/2। सो y इक्विवेलेंट जो निकलती है वो हमारी g इक्विवेलेंट प्लस और माइनस j बीटा इक्विवेलेंट में निकलती है। तो यहाँ पे बीटा इक्विवेलेंट 0 हो रही है, बिकॉज देखो ये सर्किट रेजोनेंस पे, तो रेजोनेंस पे एट रेजोनेंस क्या होता है, बीटा L इज इक्वल्स टू बीटा C। सो दैट्स वाई दीज टू आर गेटिंग कैंसिल आउट, और जो सर्किट हो रही है वो हमारी प्योरली रेजिस्टिव हो जा रही है। तो G इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 1/2। तो R इक्विवेलेंट क्या होगी, 1/G इक्विवेलेंट, दैट इज 2 ओम। सो डायरेक्टली आप R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 भी ले सकते हो या फिर आप वेरीफाई करके देख भी सकते हो। तो अब पावर की बात करते हैं। सो पावर विल बी P एवरेज will be what, half of simply VRMS² divided by R। VRMS, so यहाँ पे V पीक की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20, तो VRMS कितना हो जाएगा, 20/√2, सो 20/√2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, दैट इज 2। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे so this will be 20 into 20 divided by 4, so 100 watt। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 100 watt। so this is the problems related to resonance। तो रेजोनेंस हमारा यहीं पे एंड होता है, रेजोनेंस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।